Hello friends, welcome on Yourpedia. I am Vishal Sharma, and friends, in today's class we will study one topic that is related to verbal reasoning, you can say, that is cryptarithmetic. Okay, so this topic we will study. Okay, so friends, let's first understand what is the meaning of cryptarithmetic. Okay, friends, if you will see any mathematical operator that is applied between you can say unknown alphabets. Okay, if you will see any mathematical operator like say plus, minus, multiplication, okay, these type of mathematical operators, if these are applied between unknown alphabets or unknown numbers, okay, so these type of problems are known as cryptarithmetic problems. Okay, and generally these type of problems are asked in examination like Infosys or TCS. Okay, particularly these type of companies, they ask these type of questions related to cryptarithmetic. Okay, you will not find these type of questions in SSC or any other examination, but this year IPIT is also included this part, cryptarithmetic. Okay, so that's why we are studying for IPIT. Okay, so what I am saying, friends, crypto arithmetic problem, there is a like mathematical operator that is applied between the unknown alphabet. Okay, and you need to solve that particular problem. Crypto arithmetic puzzle, you can say. Okay, it's like a mathematical game. You can say it's like a mathematical puzzle. If you are having that knowledge of that skill of solving, so you will be easily able to solve these type of questions. Okay, दो ही तरह की इसमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी, दो तरह के आपको इसमें बच्चे देखने को मिलेंगे। वन जिसको ये बड़ा इजी लगेगा, सेकंड जिसको ये बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, जिसको बड़ा इजी लग रहा है मतलब उसको थोड़ा प्रिवेंटिव रखना पड़ेगा कि वो एरर ना करे, मिस्टेक ना करे। ठीक है, जिसको ये डिफिकल्ट लगेगा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी एबल टू सोल्व problems in, you can say, after practicing, obviously you need to do that practice. After that you will be able to solve. Okay, so what is that problem? Let's take a particular problem and then we will understand how to solve those particular problems related to crypto arithmetic. Okay, so मैं एक problem लेता हूं आपको. Let's that first problem is say given, like given question will be like this, friends. Question कैसा होगा? होगा given 2 plus go equal to out. गिवन है कि 2 प्लस गो इक्वल टू आउट, देन तब आपसे पूछेगा देन बताओ कि O प्लस यू प्लस टी क्या होगा। O प्लस यू प्लस टी क्या होगा? कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, ए, ठीक है, बी, सी और डी। और ये जो ऑप्शन दिए होंगे ना, नंबर दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, क्या दिए होंगे? नंबर। ठीक है, डिजिट्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ क्या दिए होंगे? डिजिट्स। तो आपको यहां तो सारे अल्फाबेट ही दिख रहे हैं और आपको आंसर पूछ रहा है वो डिजिट्स में, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अल्फाबेट्स दिए हैं सारे और नंबर पूछ रहा है आपको डिजिट में, तो कैसे इसको करना है देखिए वो देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट पहली चीज जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है तो प्रॉब्लम को ऐसे लिखना है, टू गो आउट, ये तो गिवन है। पहला चीज की प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड, दो चीजें हैं इसकी जो वो प्रॉब्लम में भी आपको देगा और रूल आपको याद भी रखना है। तो देगा क्या कि जितने भी ये लेटर्स हैं, जितने भी ये लेटर्स हैं, ऑल लेटर्स या ऑल अल्फाबेट्स, ऑल लेटर्स या अल्फाबेट्स, ये क्या है? आर डिस्टिंक्ट। ये क्या है? आर डिस्टिंक्ट है। ये सभी क्या है? डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। यूनिक मतलब अगर ये टी 3 है तो ये 3 नहीं हो सकता, कोई और जो अल्फाबेट या लेटर है वो 3 नहीं हो सकता। सभी के सभी क्या है? यूनिक है। ये ओ दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये भी ओ सेम हो सकता है क्योंकि तीनों क्या है? ओ है। बट जी और टी ये सेम नहीं हो सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि जो जितने भी अल्फाबेट होंगे, ऑल हैविंग वैल्यूज, ऑल हैविंग वैल्यूज बिटवीन 0 to 9, जितनी भी इनकी जो भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं इन सबकी वैल्यूज क्या होंगी? 0 से 9 के बीच में ही होगी। दीज आर टू यूनिवर्सल रूल यू कैन से फॉर क्रिप्ट अरिथमेटिक। ये होगा ही होगा। ठीक है, या तो ये आपको गिवन में देगा, जब जहां क्वेश्चन देगा उसके साथ ही चीजें लिख के देगा, नहीं तो आपको इसको मान के ही चलना है। ठीक है, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक एंड ऑल हैविंग वैल्यू 0 to 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब वो आपको एडिशन का दे सकता है, मल्टीप्लीकेशन का दे सकता है, ठीक है। हम मान के ये चल रहे हैं कि आपको शायद वो 2 क्वेश्चन का ही दे, 2 का, वरना एडिशन 3 की भी हो सकती है, थोड़ा डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको 2 के जब भी आप एडिशन करोगे, उस एडिशन के लिए रूल क्या है? रूल कुछ नहीं है, बस आपको समझना क्या है, ये हम करते आए हैं, हमें पता है, एडिशन तो हम बचपन से करते आए हैं। हमें पता है क्या, कि जब भी 2 डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, 2 डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड 1 होता है। व्हेन 2 डिजिट्स आर एडेड, देयर मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड इज 1, ठीक है। मैक्सिमम 1 मींस 1 होगा, अगर होगा तो 1 होगा, अगर नहीं होगा तो 0 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 0 या 1 ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब भी आप 2 यूनिट्स को ऐड करते हैं, मतलब 2 डिजिट्स को आप ऐड करते हैं, मतलब ऐसे कुछ। देखिए 86 प्लस 82 क्या होगा? देखो 8 और 6 कितना होगा? 6 और 2 8, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। 8 और 8 कितना होगा? 16। तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा भाई? 1 होगा, और वो 1 ही यहां पे आ जाएगा। हम करते हैं एडिशन, हमें करनी आती है, ठीक है। वही चीज इस पे अप्लाई करनी है, सेम टेक्निक जो हम करते हैं वो इसको इस पे अप्लाई कर देना है। बस यहाँ पे क्या आते हैं हमारे डिजिट से, और यहाँ पे क्या है? अल्फाबेट्स, लेटर्स है, ठीक है। अब कैसे कर रहे हैं इसको देखो। एक चीज क्या ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? 1। और जो ये 1 ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इस 1 को ही तो हम नीचे लिख रहे हैं। जो ये 1 कैरी फॉरवर्ड होता है, इसी 1 को हम कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपको वैकेंट स्पेस दिख जाए लेफ्ट में, ये जो लेफ्ट साइड है, आपको इधर लेफ्ट में अगर कोई वैकेंट स्पेस दिख जाए, तो प्रॉब्लम को यहां से शुरू करना है। और अगर वैकेंट स्पेस ना दिखे, तो फिर आप इसको राइट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? इफ यू आर गेटिंग सम वैकेंट स्पेस, तो इसको लेफ्ट से शुरू करो, नहीं तो इसको राइट से शुरू करो। अब देखो मेरे को यहाँ पे कुछ वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ आ रहा है। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ आ रहा है। वो कब आ सकता है? अगर यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ। भाई अगर यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो जीरो, हम जीरो लिखते ही नहीं है। अगर यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो क्या हम यहां कुछ लिखते? नहीं लिखते, यहां पे कुछ आता ही नहीं। मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तभी तो आया है। और मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है? 1। इट मीन जो 1 ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो वही तो है। इट मीन ये ओ क्या है? ये 1 ही तो है। तो इसके सबस्क्रिप्ट में 1 लिख देना है। ओके, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देना है? 1। तो ये जो ओ है, ये क्या है? 1 है, ठीक है। अब जहां जहां भी आपको ओ दिखे, उसको 1 से रिप्लेस कर दो। जहां जहां आपको ओ दिखे, उसको 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। कर दिया। इसको हम ऐड कर रहे हैं, हम दोनों को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप 1 और 1 को ऐड करोगे, अब ओ को भूल जाओ, 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो इट मीन 2 क्या है? टी क्या है? टी क्या बन जाएगा? 2। और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा फ्रेंड? 0। क्योंकि जब दोनों का एडिशन 2 है, तो कैरी फॉरवर्ड तो कुछ होगा ही नहीं। तो इट मीन कैरी फॉरवर्ड क्या है? 0। और जहां जहां आपको टी दिखे फ्रेंड्स, वहां पे 2 लिख दो। जहां जहां आपको टी दिखे, वहां पे क्या लिख दो? 2 लिख दो, ठीक है। तो हमने यहां क्या लिख दिया? 2। अब देखो, यहां से एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एक क्या हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। 2 में क्या ऐड करें कि आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए? मिनिमम क्या ऐड करें 2 में कि कैरी फॉरवर्ड हो जाए? 8। मिनिमम 8। और मैक्सिमम क्या ऐड कर सकते हो? 9। क्योंकि जी जो है, जी की मिनिमम वैल्यू 8 तो होनी चाहिए। क्यों 8 होनी चाहिए? क्योंकि तभी तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। अगर आपने 7 रखा, जी को क्या रखा? 7, तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे? 9। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड इधर से तो क्या है? 0। इधर से कैरी फॉरवर्ड क्या है? 0। तो 7 और 2 9, तो आगे तो कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, तो मतलब ये आएगा ही नहीं। बट ये तो आ चुका, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9, ठीक है। 8 और 9 में से ही जी की वैल्यू होगी। अब 8 होगी या 9 होगी, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ट्राई करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो अगर हम इसको जी को 9 रखते हैं, जी को क्या रखते हैं? 9। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो यहां 11 एक आएगा, और एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड तो चलो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया एक। बट क्या ये यू 1 हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ओ इज ऑलरेडी 1। सभी के सभी अल्फाबेट्स क्या है? वो क्या है? यूनिक है। तो ये 1 नहीं हो सकता। इट मींस जी 9 नहीं हो सकता। इट मींस जी क्या है? जी 8 है। इट मींस जी क्या है? 8 है। तो ये 8 हो गया, क्योंकि 8 से कम हो नहीं सकता, और 9 ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 8। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 8 और 2 10। तो इस मींस यू क्या हो जाएगा? 0। यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 8 8 और प्लस 2 10,
10 का 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू फ्रेंड्स, O है 1, U है 0, T है 2, सिंपली इजिली वी कैन फाइंड आउट O प्लस U प्लस T, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 0 प्लस 2, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है लाइक दिस, दिस प्लस इज इक्वल टू हेयर, दिस प्लस इज इक्वल टू हेयर, ठीक है। गिवन, ये क्या है, गिवन है, गिवन दिस प्लस इज इक्वल टू हेयर, ठीक है। And what he's saying like all alphabets are unique, distinct, and their values lies between 0 to 9. उनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, तो बताओ ये क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है मेरे को ये बताओ ये क्या होगा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स इसको, अगेन कैसे सोल्व करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट पहला स्टेप क्या है कि इसको इस तरह से लिखना है, दिस इज हेयर, ठीक है, दिस इज हेयर। अब देखो कैसे, अब हमें क्या कोई वैकेंट स्पेस दिख रहा है लेफ्ट में, यस देयर इज अ वैकेंट स्पेस, तो इसको यहीं से शुरू करेंगे, वैकेंट स्पेस हमें यहां पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये टी का टी यहां पे होता, अगर ये यहां जो टी है सेम टी यहां पे होता, इट मीन हम क्या कंक्लूजन निकालते कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, बट देयर इज टी एंड बट एट दिस प्लेस वी आर वी कैन सी देयर इज एच, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और दोनों अलग अलग कब हो सकते हैं, जब कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ हो भाई। ये तो तभी पॉसिबल है जब यहां से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ हो, और मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड तो 1 ही हो सकता है, मतलब या तो 0 हो सकता है या 1, 0 अगर नहीं होगा, अगर हो रहा है तो कितना हो सकता है, 1। इट मींस इस कॉलम से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो कितना हुआ है, 1, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इन दोनों की भी वैल्यू देखो, इन दोनों की वैल्यू देखो, एच और ई, क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है, और ये एक आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा है, एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। इट मींस कि अगर यहां से इसको एक आया, अगर यहां से इसको एक आया तो एच कितना होगा, 9, अगर यहां से इसको एक आया तो ये कितना होगा, एच कितना होगा, एच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, आप कहोगे 9, एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9। अब क्या मैं यहां एच की जगह 8 रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं एच की जगह 8 रखूंगा तो 8 है यहां पे, अगर मैं मान भी लूंगी कोई कैरी फॉरवर्ड हुआ, अगर मैं मान के चलूं कोई कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, तो आगे तो कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। इट मींस एच की मिनिमम मैक्सिमम जो मर्जी मानो, एच की वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी, वाई, बिकॉज ओनली देन, तभी ये आगे एक कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, बिकॉज 9 प्लस यहां से क्या हो रहा है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इस तरफ से भी जो 1 क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10, तो ई क्या हो जाएगा, 0, ई क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज 9 प्लस 1 10, 0, और 1 क्या हो गया है, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9, एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है। तो जब एच की जगह 9 लिख सकते हैं तो 9 यहां भी लिख दो भाई, 9 यहां भी लिख देंगे, ठीक है। क्या कहीं और हमें 9 नजर आ रहा है, एच नजर आ रहा है, नहीं, बट क्या ई नजर आ रहा है, ई हमारा क्या है, 0, तो 0 यहां भी लिख दो, क्योंकि ई क्या है, 0, ई क्या है, 0। अब देखो क्या ऐड करने के बाद 9 बनता है, ई क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो टी की वैल्यू क्या होगी, 8, टी की वैल्यू क्या होगी, 8, क्या 8 किसी और को हमने असाइन किया, नहीं, तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, 8 प्लस 1 9, तो टी की वैल्यू हमने असाइन कर दी, ई की कर दी, सबकी कर दी। अब देखो बचा ये, बचा क्या, ये, हालांकि हम इसको तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं, टी एच ई आर ई, क्योंकि टी हमारे पास आ गया है, एच आ गया है, ई भी आ गया है, आर भी, आर नहीं आया अभी, अभी हमारे पास आर नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू तो भी निकालनी पड़ेगी, तभी इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो
एस प्लस एस क्या हो, देखो दोनों क्या है, एक तो पहली बात सेम नंबर है, दोनों क्या है सेम नंबर है, और उनको ऐड करके आपको यहां पे जीरो मिल रहा है, और वो आगे एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अगर जीरो मिल रहा है तो आगे एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा होगा ना, अगर ये जीरो ही होता तो इतना नंबर बनता ही नहीं है। अगर यहां पे जीरो ही बनना था तो आगे नंबर बनता ही नहीं, इट मींस आगे ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब ये नंबर जो है 10 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है जीरो, और ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, दो नंबर्स जो कि सेम है उनका सम 10 कब हो सकता है, जब वो नंबर 0 से 9 के बीच में हो। जब वो नंबर्स क्या हो 0 से 9 के बीच में हो, कब वो नंबर्स क्या वैल्यूज हो सकती है उन नंबर्स की, 5 ओनली। नंबर्स की वैल्यू क्या होगी 5। अगर अप्लाई करना चाहते हो इक्वेशंस तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एस प्लस एस इक्वल टू ई, तो जीरो है भाई, एस प्लस एस कितना है जीरो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 10, क्योंकि एस प्लस एस कितना होगा 10। 10 क्यों, क्योंकि ये तो क्या है जीरो, ई क्या है जीरो, और ये आगे कैरी फॉरवर्ड क्या कर रहा है 1, इट मींस एस प्लस एस क्या है 10, इट मींस एस क्या होगा 5, इट मींस एस क्या होगा 5। तो एस की वैल्यू क्या है 5, और ये भी कितना है 5। तो 5 प्लस 5 10, और आगे एक क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब हमें आई और आई की वैल्यू और इस आर की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो यहां वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जिस जिसको हमने असाइन कर दिया उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जीरो हमने किसी को असाइन कर दिया है भाई, जीरो तो ई को असाइन कर दिया है, जीरो तो हमने ई को असाइन कर दिया है। क्या वन किसी को असाइन किया है, वन अभी असाइन नहीं किया है। टू किसी को असाइन किया है, नहीं किया है। थ्री किया है, नहीं किया। फोर नहीं किया। फाइव कर दिया है, फाइव हमने असाइन कर दिया है एस को। ठीक है, ये ई को असाइन कर दिया, ये एस को असाइन कर दिया। सिक्स नहीं किया, सेवन नहीं किया, एट और नाइन कर दिए हैं। एट किया है टी को, ठीक है, और नाइन किया है हमने एच को, नाइन कर दिया है एच को। ठीक है, अब देखो दो नंबर्स जो कि सेम है, दो नंबर जो कि सेम है उनका सम 10 से ज्यादा है, तभी तो वो एक कैरी फॉरवर्ड करेगा। जो आई और आई है वो दो नंबर्स क्या है, उनका सम क्या है 10 से ज्यादा है, तभी तो 10 से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो आई और आई क्या हो सकते हैं, क्या ये वन हो सकते हैं भाई, क्या ये वन हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर वन वन करेंगे तो वन वन कितना होगा टू, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया है तो वन वन, टू प्लस वन थ्री, तो ये तो थ्री लिख देंगे हम, बट क्या ये एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या ये टू हो सकता है, टू प्लस टू फोर, एक फाइव, तब भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या ये थ्री हो सकता है, थ्री प्लस थ्री सिक्स, वन सेवन, तब भी नहीं होगा। फोर हो सकता है, फोर प्लस फोर एट, और एक नाइन, तब भी नहीं होगा। क्या फाइव तो हो ही नहीं सकता। सिक्स हो सकता है, सिक्स प्लस सिक्स 12 प्लस वन 13 हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सिक्स हो सकता है। क्या सेवन हो सकता है, सेवन प्लस सेवन, सेवन प्लस सेवन 14 प्लस वन फाइव, चलो सेवन अभी के लिए मान लेते हैं हो सकता है। सेवन प्लस सेवन 14 प्लस वन 15, यहां फाइव वन हासिल। क्या ये एट हो सकता है, एट तो हो ही नहीं सकता, नाइन नहीं हो सकता। तो बचे क्या ऑप्शन, छह और सात। बचे क्या ऑप्शन आई के लिए हमारे पास, छह और सात। अब मैं कहूं कि आपको सात भी नहीं हो सकता, सात भी नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज अगर आप इसको आई को सात रखोगे तो क्या होगा, सेवन प्लस सेवन क्या होगा 14, 14 प्लस वन फाइव, तो आर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। क्या आर फाइव हो सकता है, नहीं, क्योंकि फाइव आप ऑलरेडी यू हैव अलॉटेड फाइव टू एस, फाइव आप ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, और आर और एस क्या है, दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आर फाइव नहीं हो सकता, इट मींस जो ये आई है वो सेवन भी नहीं हो सकता, इट मींस आई कितना है, वो सिक्स ही है। एक ही ऑप्शन बचा कि आई क्या है, सिक्स है, तो सिक्स प्लस सिक्स 12 प्लस वन 13, तो आर क्या हो जाएगा 3, और वन आगे हो जाएगा कैरी फोर्ड। तो अभी हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पूरा सोल्व हो चुका है। नाउ यू कैन राइट वैल्यू ऑफ दिस, देयर की वैल्यू आप लिख सकते हैं। टी कितना है 8, हमें निकालना है देयर, देयर तो टी कितना है 8, एच कितना है भाई 9, ई कितना है 0, टी एच ई आर, आर कितना है 3, अगेन ई कितना है 0, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा आपका 20, क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए इसमें बच्चे इतना टाइम लग रहा है, वरना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इट विल नॉट टेक सो मच टाइम, है ना, इजीली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपके लिए नई चीजों तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी इसमें लगे, बट आप इसको कर पाओगे। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन दिया है कि अब मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हियर शी कम्स, हेयर शी कम्स, ये दोनों का जो सम है हेयर प्लस शी इक्वल टू कम्स है, ठीक है। और आपको गिवन दिया है कि, गिवन भी दिया है कुछ इंफॉर्मेशन कि जो एस है वो 8 है। गिवन क्या दिया है कि एस क्या है, 8 है, ये भी आपको गिवन दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ इसमें सबकी वैल्यूज बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ एस शी बता दो, चलो आप ये बताओ कि शी एस प्लस एच प्लस एस प्लस एच प्लस ई प्लस कर देते हैं हम शी कम्स, बता दो चलो शी कम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि शी प्लस सी ओ एम ई प्लस एस, शी कम्स, ये बता दो, ठीक है। आपसे मैं पूछ, ये दिया है हियर प्लस शी इक्वल टू कम्स, गिवन एस इक्वल टू 8, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एस, एस प्लस एच प्लस ई प्लस सी प्लस ओ प्लस एम प्लस ई प्लस एस, शी कम्स, इसकी आपको क्या बतानी है, मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड्स, ट्राई, जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सोल्व इट, ओके। कोई इसमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, सिंपल, यू नीड टू अप्लाई योर स्किल, ओके। आपको वो अप्लाई करना है, वो प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है इसको सोल्व करने की। नहीं कर पाओगे तो मैं आपके लिए इसको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। बट आपको पहले वीडियो पॉज करना है और इसको ट्राई करनी है सोल्व करने की, ठीक है। चलो अब मैं इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज गिवन फ्रेंड्स, हेयर प्लस शी इक्वल टू कम्स एंड एस इक्वल टू 8, ठीक है। चलो अब एस इक्वल टू 8 है तो सबसे पहले एस को 8 तो लिख ही दो, एस को 8 लिख दो। क्या कहीं और ऐसे है, यस यहां भी है, इसको भी 8 लिख दो, कहीं और ऐसे नहीं है, चलो ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन, अब देखो ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, एच और ओ क्या है, डिस्टिंक्ट है। और यहां पे हमें वैकेंट स्पेस भी दिख रहा है। आगे कैरी फोर्ड कितना हो सकता है भाई, यहां से यहां कुछ कैरी फोर्ड हुआ है तभी तो सी आया है, यहां से यहां कुछ कैरी फोर्ड हुआ तो तभी क्या है, सी। तो इसमें सी कितना है, 1, सी कितना है, 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दोनों का एडिशन, देखिए यहां से मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना हो सकता है, 1, यहां से भी कैरी फोर्ड हुआ है तभी तो ये दोनों डिस्टिंक्ट बने। अगर यहां से कैरी फोर्ड नहीं होता तो सेम एच यहां पे आता, अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो एच ही यहां पे आता, इट मींस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है। और इसने आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया, इट मींस एच की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, एच की वैल्यू 9 ही हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपने एच को 8 रखा तो 8 एक क्या हो जाएगा, 9, तो एक आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा ही नहीं, ठीक है। 0 से 9 के बीच में वैल्यू है तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एच की वैल्यू क्या होगी, 9, ओनली देन इट विल बी एबल टू, यू कैन से कैरी फॉरवर्ड 1, ठीक है। तो 9 और एक क्या होगा, 10, इट मींस ओ क्या हो गया, 0, ओ क्या हो गया, 0। और इसने एक क्या कर दिया, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जहां जहां जो भी वैल्यूज हमें निकली हैं उनको नोट कर लो। एच क्या निकला, 9, तो हमने यहां लिख दिया 9, ठीक है। और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं आई अभी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए, दोनों क्या है, यूनिक है, दोनों सेम है, ई और ई क्या है, सेम है, और दोनों का सम कितना है, 8, ठीक है। दोनों का सम कितना है, 8, 8 है तो क्या आगे कोई कैरी फॉरवर्ड करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा ही नहीं भैया, 8 ही है, एस तो 8 है, एस की एक्चुअल वैल्यू 8 गिवन है, ठीक है। तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। और ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब ई कितना हो, 4 हो, तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 4 और 4 ही क्या होते हैं, 8 होते हैं। आप 6 और 2 8 नहीं ले सकते, क्योंकि बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है। तो ये 4 4 4 4 क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब जहां जहां आपको ई दिख रहा है वहां भी क्या रख दो, 4 रख दो, वहां पे क्या रख दो आप, 4, और यहां पे भी क्या रखोगे, ये भी 4 रखोगे यहां पे भी, ठीक है। अब देखो यहां से कैरी फॉरवर्ड क्या है, कुछ नहीं है, बट 9 यहां पे आ रहा है, यहां पे 9 है, 9 में क्या ऐड करने पे 4 आएगा। अब 9 में क्या ऐड कर, सब्ट्रैक्ट तो हम कर नहीं रहे, 9 में क्या ऐड करेगी 4 आ जाए, 4 यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए, कैसे आएगा, जब आप आर को क्या रख दोगे, 5, आर को क्या रख दोगे, 5, क्योंकि 9 प्लस 5 क्या होगा, 14, 9 प्लस 5 क्या होगा, 14, और 1 आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, 1 आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 और 8 13, 4 प्लस 1 5, 5 और 8 13, और 1 आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो नाउ वी आर हैविंग वैल्यूज ऑफ ऑल, अब हमारे पास क्या है, सबकी वैल्यूज है, अब हमारे पास क्या है, सबकी वैल्यूज हैं,
ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, शी कम्स, मतलब 8, 9 और 8 कितना होता है भाई, 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 1 22, 25, 29, और ये कितना हो जाएगा 37, 37 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू वाई जेड एक्स, इक्वल टू वाई जेड एक्स, इक्वल टू क्या है, वाई जेड एक्स। तो आपसे पूछ रहा है बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। गिवन इज लाइक गिवन क्या है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू वाई जेड एक्स, देन फाइंड आउट, find the value of x plus y plus z, okay, and what other things are given, all alphabets they are unique and their values lies between 0 to 9, okay. So try to solve it friends, again I request you to just pause the video and try to solve it, okay. So uh, after that if you will not able to solve, then see that particular solution. So I am solving it for you friends, how to solve this type of questions. So friends, what you are getting, like x plus x equal to y, x plus x equal to y, what are the say, अब इसमें आप क्या, आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या, कोई वैकेंट स्पेस है आपके पास, इसमें कोई वैकेंट स्पेस है आपके पास, नहीं है, कोई भी हमारे पास वैकेंट स्पेस इसमें नहीं है, ठीक है। तो बट हमें क्या पता है कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या है, 0 से 9 के बीच में है, इनकी वैल्यू क्या है, 0 से 9 के बीच में ही है, ठीक है। चलो अब इसको यहां से शुरू करते हैं, यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये दोनों सेम दिख रहे हैं, मेरे को ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम, ठीक है। एक्स प्लस एक्स और यहां क्या दिख रहा है, वाई, एक्स प्लस एक्स और यहां क्या दिख रहा है, वाई, ठीक है। यहां से शुरू करना है, यहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पे देखता हूं, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड, ये कब हो सकता है, वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड कब हो सकता है, या तो वाई क्या हो, 0 हो, या तो y क्या हो, 0 हो, या ये क्या हो, यहां पे 10 बन जाए, क्योंकि 10 में ही कुछ ऐड करते हैं, देखो 10 जमा 5 क्या होता है, 15, अगर z क्या है 5 तो 10 जमा 5 क्या बनेगा, 15, अगर z क्या है 2 है तो 10 जमा 2 बनेगा 12, ठीक है। अगर ये क्या है 3 है 4 कुछ भी हो, इसका और इसके कैरी फॉरवर्ड का y प्लस 1, अब y अकेला तो 10 नहीं हो सकता भाई, y अकेला 10 नहीं हो सकता, ठीक है। देखो y की यहां लिख लो इसको, अगर आपको ऐसे समझना है तो y को लिख लो, या तो y 0 हो सकता है, तभी तो y प्लस जेड जेड ही हो सकता है, y प्लस जेड जेड कब हो सकता है, या तो y क्या हो 0 हो, ठीक है, या y क्या हो 9 हो, या y क्या हो 9 हो, या 8 हो, 8 हो तब भी तो हो सकता है, क्योंकि 8 हो, ठीक है, और 1 आगे से क्या हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, नहीं तब नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 8 होगा और एक कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये 9 बन जाएगा ना, बट 9 प्लस समथिंग तो आपको सेम डिजिट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये या तो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 0 या 9, 0 या 9। अब देखो अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं y को 0 पुट, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ ऐड किया, जेड प्लस जेड, क्या जेड में 0 ऐड करके क्या सेम जेड नहीं बनना चाहिए, जेड में 0 ऐड करके तो जेड ही बनना चाहिए, ठीक है, 0 है अगर वाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, वाई 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से, जो y है वो 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 0 पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, तो y क्या होगा 9 ही होगा, जब y 0 पॉसिबल नहीं है तो y की वैल्यू क्या होगी 9, अब जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे 9 लिख दो, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो आप, 9, जहां जहां आपको y दिखेगा वहां पे क्या लिख दो, 9। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास, हमारे लिए क्या है, कि अब देखो 9 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, 9 में कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड किया z, ठीक है, अब हम 9 तो अलॉट कर चुके हैं, अब z क्या हो सकता है, z तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये क्या है यहां पे एक क्या होगा, अगर ये क्या है एक, यहां से क्या होगा कैरी फॉरवर्ड,
एक कैरी फॉरवर्ड भी होना जरूरी है, क्योंकि ये 10 बनना चाहिए। यहाँ पे टोटल क्या बनना चाहिए 10, क्योंकि 10 जमा जब कुछ भी आप करोगे तभी तो सेम नंबर बनेगा। तो एक यहां से श्योरली कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है। अब देखो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें इसमें क्या देखनी है। अब हम लिख भी लेते हैं, हमने एक ही नंबर को अलॉट किया है, वो है y इक्वल टू 9। ठीक है, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो ये दोनों क्या है, सेम नंबर है। x और x क्या है, दोनों सेम नंबर है। ठीक है, और दोनों को सेम करके हमें 9 मिल रहा है, और आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इससे आगे कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। इट मींस दोनों का सम क्या है 9। ये कब हो सकता है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चाहो तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं 2x। अब क्या 2x इक्वल टू 9 हो सकते हैं क्या? अगर 2x इक्वल टू 9 होंगे तो x तो कुछ पॉइंट में डेसिमल में हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस यहां से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, और कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है 1। कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है 1। इट मींस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 9, और इट मींस 2x, मैं यहां लिख देता हूं 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 9। इट मींस 2x इक्वल टू क्या है 8, और x इक्वल टू क्या है 4। इट मींस x इक्वल टू क्या है 4। इट मींस इस x पे भी मैं 4 लिख सकता हूं, इस पे भी मैं क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे भी मैं 4 लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्योंकि आपको पता है 9 में क्या जोड़े कि वो 14 बन जाए, 9 में क्या जोड़ेंगे वो 14 बन जाए 5। तो z क्या हो जाएगा 5। तो 9 और 5 14, 14 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 9 प्लस 1। अब यहां पे आप 5 लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे भी आप 5 लिख सकते हो। तो 9 प्लस 5 14, 14 4 आप यहां लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 15 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ यू आर हैविंग ऑल वैल्यूज। अब आपके पास सभी की सभी वैल्यूज हैं, एक्स वाई जेड सब आपके पास वैल्यूज हैं, एंड यू वांट टू फाइंड आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब एक्स कितना है भाई हमारा, एक्स आया 4, एक्स कितना आया 4, वाई कितना आया हमारा, वाई है 9, और जेड कितना है हमारा, जेड है 5। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, ये कितना हो जाएगा आपका 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18 विल बी अवर राइट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दीज टाइप ऑफ क्रिप्टा अरिथमेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, कर पाओगे आप। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं विच यू नीड टू सोल्व इफ यू एबल टू सोल्व। ओके, अगर आपसे नहीं होती है तो देन यस नेक्स्ट क्लास आई विल सोल्व इट फॉर यू। ओके, सो कुछ क्वेश्चन है मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई और रूल नहीं है, सिंपल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर डिस्टिंक्ट। और जब भी आप दो अल्फाबेट्स को ऐड करते हैं तो आगे कैरी फॉरवर्ड क्या होता है 1। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेंड एक तो आपको ये सोल्व करना है, मेरे को हर हर अल्फाबेट का मेरे को क्या बताना है आपको नंबर, हर अल्फाबेट का। यहां पे आप लिख लो काम क्या है, एस आ गया, ई आ गया, ठीक है, एन आ गया, डी आ गया, ठीक है, एम आ गया, ठीक है, ओ आ गया, आर आ गया, ठीक है, ई तो ऑलरेडी आ चुका है, एम भी आ चुका है, ओ भी आ चुका है, एन भी आ चुका है, ई आ चुका है, वाई वाई में यहां लगे। आपको इसका हर एक का कोरोस्पोंडिंग नंबर बताना है मेरे को, हर एक का क्या बताना है, कोरोस्पोंडिंग डिजिट बतानी है, कोरोस्पोंडिंग डिजिट बतानी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्या है, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी। क्योंकि आपको अगर आपने हर एक का बता दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपसे कुछ भी पूछे, वो पूछे मनी की फुल फॉर्म बताओ, मोर की बताओ, या सेंड मोर की बताओ, कुछ भी आपसे पूछे, इफ यू एबल टू सोल्व दिस लाइक व्हाट इज द डिजिट कोरोस्पोंडिंग टू वाई, व्हाट इज द डिजिट कोरोस्पोंडिंग टू एस एंड ऑल दिस, यू कैन इजिली ऐड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको ये सोल्व करना है, ये वो है यूअर, यूअर प्लस यू, यूअर प्लस यू, ये इसको हम लिखते हैं हार्ट, यूअर प्लस यू इक्वल टू हार्ट। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है, इसमें भी आपको सेम सबकी कोरोस्पोंडिंग बतानी है, सबके कोरोस्पोंडिंग आपको डिजिट बताने हैं, बट इसमें इसके साथ एडिशनल एक आपको दिया हुआ है ओ इक्वल टू 4। एडिशनल क्या दिया हुआ है, ओ इक्वल टू 4, जस्ट टेक ए स्नैपशॉट और यू कैन नोट इट डाउन वेरी। ओके, यूर प्लस यू इक्वल टू हार्ट, गिवन क्या है ओ इक्वल टू 4, और आपको बताना क्या है हर अल्फाबेट लाइक यू वाई ओ, यू आर, ठीक है, एच ई ए आर आ गया इसमें, और टी। ठीक है, इन सब का, इन सब के कोरोस्पोंडिंग आपको क्या बताने हैं,
आपको इनके डिजिट्स बताने हैं, ठीक है। कोरस्पोंडिंग क्या बताना है, डिजिट, TAYOURHE, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन और लिखते हैं, वो है आपका USSR प्लस USA, ठीक है। और इसको मैं लिखता हूं पीस, ठीक है। ये आपको गिवन है, गिवन क्या है, USSR प्लस USA इक्वल टू पीस, ठीक है। और आपसे आपको बताना क्या है, आपको हर एक अल्फाबेट का आपको कोरोस्पोंडिंग नंबर बताना, लाइक USR, ठीक है, A, P, E और C, ठीक है। इसके कोरोस्पोंडिंग आपको क्या बताना है, सबकी डिजिट्स बतानी है, सबके कोरोस्पोंडिंग क्या बताना है आपको, डिजिट्स, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन फ्रेंड्स। Okay friends, so this is all about today's class friends. Thank you very much. Thanks for watching. Have a nice day. Keep preparing.